Hello students, this is lecture number 7 on topic electromagnetic induction. In last two lectures, we discussed about the concept of self-induction and obtain the expression for self-inductance of plain coil, solenoidal coil and toroidal coil. Now in today's lecture, let us discuss the very first topic, energy stored in magnetic field. या energy stored in inductor. Normally क्या रहता है? When you connect the battery in series with the inductor, magnetic field is linked with the inductor, right? When current is allowed to flow through that coil, then growth of current through the coil changes the magnetic field and magnetic flux link with the coil. EMF is induced and induced current flows. When the current is growing through the coil, induced current opposes the growth of coil. And when current is decreasing through the coil, induced current will not allow that current to decay or decrease. So every time to grow the current or to decrease the current, battery needs to perform the work. तो battery को काम करते रहना पड़ेगा. If battery continue to do the work, then work done by the battery is stored in the inductor in the form of magnetic potential energy. उस एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. अभी हम लोग डिस्कस करें तो प्रिसाइजली यहाँ से पढ़ता हूँ. कंसिडर द सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड टू एन इंडक्टर यानी बैटरी. एज करंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, जैसे करंट ग्रो होने लगेगा, ईएमएफ इज इंड्यूस इन द इंडक्टर. लेकिन ये ईएमएफ क्या रहता है? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ रहता है या बैक ईएमएफ रहता है. बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस ईएमएफ करंट इंड्यूस होगा और वो करंट ओरिजिनल करंट के ग्रोथ को अपोज करेगा. देयरफॉर connected battery need to supply the energy for the growth of current through the inductor. So that work is always done against the opposition according to Lenz's law. And that work done is converted to energy, and that energy is associated in the region of magnetic field of inductor. Okay, let us find out that expression. See, according to law of self-induction, magnitude of EMF induced in the coil is what? L di by dt, where L is self-inductance of that coil and di by dt is the change in current. Let source of EMF connected in series with the inductor sends a small current I through an inductor for time dt. So it does the work. That work is given by dW is equal to product of power into time. क्योंकि work done upon time ये power होता है. So work done is product of power into time. And what is a power? Product of EMF and current. ये power है into time. What is the value of E? That is here, L di by dt, that I wrote here, I dt. dt is cancelled here. So L I di. This is the sample work done by the source of EMF to pass the current through an inductor for time dt. This is the sample work. अगर आपको total work find out करना है, so that current starts increasing from 0 and attains the maximum value I0. तो इस sample work को आप integrate करो. तो integration of sample work is what? dW, integration from 0 to I0. इसका right hand side substitute. अभी L तो constant है because L is the self inductance. It is determined by material dimensions of inductor. ये constant है, ये आ गया. अभी ये power term है. इंटीग्रेशन x dx जो रहता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन x dx क्या लिखते हैं? x square by 2 लिखते हैं. तो मैंने I square by 2 लिखा, where I starts from 0 and attains the maximum value I0. ये definite integration है.
So substitute the value of I, first upper limit, subtract and then lower limit. ये बाहर आ गया, ये हो गया I zero square minus 0. So this is what the work done by the battery which is connected across the inductor to supply the current I, and that work done is what always overcome to back EMF or self-induced EMF. So it is with the inductor in the form of magnetic potential. See, this energy is analogous to electric energy in capacitor, half CV square. This energy is analogous to kinetic energy, half mv square. Here C indicates the inertia, M indicates the inertia, so L also indicates what? Inertia. So self-inductance is the inertia in magnetism. C is the inertia in electrostatics, M is the inertia in mechanics. Okay, ये फॉर्मूला है. यहाँ एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू भी आ सकता है. लेट मैक्सिमम करंट that can be delivered by the battery I0 is 1. अगर ये I0 1 ले लेंगे हम लोग तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ L, यानी L इज इक्वल टू 2 टाइम्स वर्क डन. L इज इक्वल टू 2 टाइम्स वर्क डन. तो L इज व्हाट? 2 टाइम्स वर्क डन. तो आप यहाँ L सेल्फ इंडक्टेंस का और एक डेफिनेशन दे सकते हैं. So what is the self-inductance of circuit? Self-inductance of circuit is numerically equal to 2 times the work done by the battery to supply 1 ampere current. The self-inductance of circuit is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with unit current in the circuit. ये MCQ आ सकता है एक बार. मतलब जो EMF बैटरी काम करेगा उसका डबल वैल्यू क्या रहेगा? सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा, प्रोवाइडेड पैसेज ऑफ वन करंट चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी. तो फाइंड आउट किया हम लोगों ने. नाउ लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी. ये सिंपल है. यू नो द फॉर्मूला फॉर एनर्जी. If you consider the solenoid, for a given solenoid, get the volume. Energy upon volume gives you energy density. तो यहाँ देखो मैंने डायग्राम में एक सोलेनॉइड दिया है. सोलेनॉइड में इन सोलेनॉइड उसका लेंथ मानो मैंने लिया L, यहाँ से यहाँ तक मैंने लेंथ लिया L. Along that length capital N number of turns are accommodated. तो कैपिटल N अपॉन L ये हो गया टर्न डेंसिटी. मानो हर सर्कल का एरिया क्रॉस सेक्शन A है और ये लेंथ L है, तो सोलेनॉइडल का वॉल्यूम हो गया है A इंटू L. क्योंकि ये अगर टर्न यहाँ से देखो, यहाँ करंट बाहर आ रहा है, यहाँ करंट अंदर जा रहा है. डॉट इन सर्कल इंडिकेट्स करंट इज कमिंग नॉर्मली आउट, क्रॉस इंडिकेट करंट इज इंडिकेटिंग नॉर्मली इन. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो हर लूप का एरिया मानो A है, ऐसे कैपिटल N नंबर ऑफ लूप्स है, दे आर एकोमोडेटेड अलोंग द लेंथ L. कैपिटल N अपॉन L ये हो गया टर्न डेंसिटी. इसका एक्चुअली लुक सिलेंड्रिकल है, जिसका क्रॉस सेक्शन है A और लेंथ है L, तो ये हो गया उसका वॉल्यूम. इसमें कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा? तो हाफ LI स्क्वायर या I0 मैक्सिमम. तो ये मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल. दिस इज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? हाफ LI0 स्क्वायर. तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. ये है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या है? A इंटू L. ये वाला. ओके. बट फॉर सोलेनॉइडल कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया है. तो उसमें से डिराइव वाला कौन सा भी एक फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर. मानो मैंने स्मॉल कैपिटल L का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ टर्न डेंसिटी स्मॉल n वाला, क्योंकि वहाँ अलग अलग फॉर्मूले कैपिटल N के टर्म में है, पाई आर स्क्वायर के टर्म में है. तो कोई भी एक सब्स्टिट्यूट करो, अकॉर्डिंगली फाइनल एक्सप्रेशन आएगा. तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया म्यू 0 n स्क्वायर A L, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. तो दैट इज हियर.
थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो हाफ म्यू जीरो एन स्क्वायर आई जीरो। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अभी मैं इस फॉर्मूला में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इंट्रोड्यूस करूंगा। देखो, सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इनसाइड, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। तो मैं ये बी यहाँ अंदर ऐड करता हूँ। तो अंदर ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये म्यू जीरो स्क्वायर कर लेता हूँ। तो म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर इज रिप्लेस बाय बी, बट टू मेक इट म्यू जीरो स्क्वायर डिनोमिनेटर पे भी एक म्यू जीरो लेना पड़ेगा। तो हाफ ये हो जाएगा बी स्क्वायर मेकिंग म्यू जीरो स्क्वायर। ये देखो, ये मैंने मैनेज किया, यहाँ पे ऊपर का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। So this is the energy density of solenoid. Okay. Now let us discuss one more expression. हम लोग अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल केबल भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखो, ये कोएक्सियल केबल है। इस कोएक्सियल केबल का आउटर सर्कल का रेडियस है बी, इनर सर्कल का रेडियस है ए। आउटर सर्कल का रेडियस है ई और इनर सर्कल का रेडियस क्या है, बी है। एक कोएक्सियल केबल है। इस कोएक्सियल टेबल इस पे ये जो बाहर का कॉइल है, इसका करंट और इसका करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो, द करंट फ्लोज डाउन इन द इनर सिलेंडर एंड फ्लोज आउट। इसका करंट अंदर फ्लो होगा, इसका करंट बाहर फ्लो होगा। तो ऐसे कोएक्सियल केबल का हमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसका आउटर रेडियस है, इनर रेडियस है, सॉरी आउटर रेडियस है बी, इनर रेडियस है ए। ओके, नाउ व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी? ये हम लोगों ने अभी डिराइव किया। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों सर्कल के बीच में एक पॉइंट लेता हूँ। ये एक पॉइंट मान लिया जहां मैंने कर्सर रखा है। दिस पॉइंट इज at a distance small r from the axis of coaxial table। और ये स्मॉल r कैसे, ग्रेटर देन a है और लेस देन b है। सो दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन at a distance r lies outside the inner cable and outer cable, या दोनों के बीच में आ रहा है। सो r is greater than a लेस देन b। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन रहेगा म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये जो कोएक्सियल टेबल है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये कोएक्सियल केबल है जिसका आउटर रेडियस है बी, इनर रेडियस है ए। करंट पासिंग थ्रू द आउटर कॉइल इज इन, करंट पासिंग थ्रू द इनर कॉइल इज आउट। इसका लेंथ है, ये केबल है राइट, लॉन्ग लेंथ रहेगा। So when current is allowed to pass through the coils, what is the magnetic energy stored in the coil per unit volume is b square upon 2 म्यू जीरो। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है आउटसाइड द इनर कॉइल एंड इनसाइड द आउटर कॉइल। सो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एट ए डिस्टेंस r, जो a से ज्यादा है, b से कम है। So this point is outside the conductor carrying the electric current. So here magnetic field of induction is given by B is equal to mu 0 I upon 2 pi r. ये standard formula है। Okay, यहाँ B का value अभी substitute कर दो, because this is the magnetic field of induction inside the coaxial table. Magnetic field of induction inside the coaxial cable. तो मैंने दोनों circumference के बीच में एक point लिया और यहाँ magnetic field का formula लिखा। Now let me put this formula here. यहाँ रख दो, ये मैंने रखा स्क्वायर फॉर्म में। ये 1/2 म्यू जीरो मैंने बाहर रखा। तो ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट। ये था मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक, ये फॉर्मूला आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल वॉल्यूम लेते हैं अंदर। मैंने कोएक्सियल टेबल का एक सैंपल वॉल्यूम लिया, ये देखो इतना वाला। इस सैंपल वॉल्यूम का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है r, इसका थिकनेस है dr,
और लेंथ है एल। सैंपल वॉल्यूम जो मैंने लिया इसका रेडियस है आर, थिकनेस जैसे यहाँ थिकनेस कितना है बी माइनस है, वैसे यहाँ थिकनेस कितना है डी आर और लेंथ है एल। तो ये सैंपल वॉल्यूम कितना रहेगा, सैंपल वॉल्यूम रहेगा 2 पाई आर डी आर इंटू द लेंथ, ये होगा उसका वॉल्यूम। ये देखो 2 पाई आर डी आर। पहला हम लोग इस सैंपल वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है वो फाइंड आउट करते हैं, फिर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन सैंपल वॉल्यूम is product of energy stored in unit volume into the volume of sample. Clear? It is energy stored in what sample? तो energy stored in unit volume यानी energy density into जिस volume के लिए आपको find out करना है उसे multiply कर लो। ये simple market mathematics। ये U B into what? ये energy density है ना, U B नहीं चाहिए तो correct करता हूँ। U D चाहिए, एनर्जी डेंसिटी इंटू द डी। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी और ये हो गया वॉल्यूम। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन में म्यू जीरो कैंसिल होगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर है एक्चुअली तो ये 4 आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर है और ये पाई एक रिड्यूस हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है और ये यहाँ आर है तो एक आर रिड्यूस हो जाएगा। तो म्यू जीरो एक कम हो गया तो एक म्यू जीरो बचा, आई स्क्वायर बचा, एल इज रिटेन, डी आर इज रिटेन, ये 4 यहाँ रिटेन हुआ, पाई स्क्वायर तो एक पाई कट हो गया, आर स्क्वायर एक आर कट हो गया और ये डी आर बाहर है, 2 to get cancelled. This is the energy stored in sample volume of coaxial cable. सैंपल वॉल्यूम जिसका लेंथ है एल, रेडियस है आर, जो ए और बी से ए और बी के बीच में है एंड थिकनेस है डी आर। अगर मुझे टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल वॉल्यूम मतलब कोएक्सियल केबल का वॉल्यूम, तो मुझे सैंपल वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें आर का वैल्यू ए से लेकर बी तक चेंज हो रहा है। आर का वैल्यूम ए से लेकर, यही वॉल्यूम अवेलेबल है ए और बी सर्कल्स के बीच में, मतलब दो कोएक्सियल सिलेंडर के बीच में जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट स्टार्ट होता है ए से लेकर बी तक, तो इसे इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन साइन ऐड करो तो ये हो जाएगा u, यहाँ इंटीग्रेशन साइन ऐड करो, देखिए म्यू जीरो आई स्क्वायर एल 4 पाई ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में मुझे लिखना पड़ेगा डी आर अपॉन आर, वेयर आर वेरीज फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि आर हम लोगों ने ए और बी के बीच में सैंपल के लिए दिया ए टू बी। बट ये एनर्जी कितना होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है, टोटल एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स होता है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, तो ये हो गया लॉग ऑफ आर टू द बेस ई, वेयर आर वेरीज फ्रॉम ए टू बी, एक्सपोनेंशियल लॉग है। ओके, अभी देखो यहाँ एक 2 कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज एल, जो हमें फाइंड आउट करना। राइट हैंड साइड में व्हाट इज रिमेनिंग म्यू जीरो एल अपॉन 2 पाई। अब ये लॉग टू द बेस ई है, तो पहला अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो फिर लोअर, तो ये आ जाएगा। या लॉग सब्ट्रैक्शन है, अगर लॉग सब्ट्रैक्शन है प्रिसाइज करोगे तो मल्टीप्लायर्स का आपको रेशियो लेना पड़ेगा। सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल केबल whose length is L, inner radius is A, outer radius is B and carrying the current. Okay. In the next lecture, we will discuss the concept of mutual inductance. Thank you.